थैंक यू चेयरमैन सर एंड ट्रेजरर सर। हाँ तो मतलब हम यहाँ खड़े गणेश जी वेट करें ना वैसा। फ्रेंड्स, हमारे डायनामिक लीडर हमारे चेयरमैन सीए नीलेश गुप्ता जी के एक थॉट प्रोसेस थी कि रूटीन में नॉलेज अपडेशन अपग्रेडेशन और अपने डेली प्रैक्टिस से रिलेटेड वर्क्स तो और कार्यक्रम हम लगातार करते रहते हैं और निश्चित तौर पे वो बहुत ही आवश्यक अंग भी है हमारे प्रोफेशन को देखते हुए, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक कई चेंजेस आ जाते हैं। तो वो प्रोसेस तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो चलता ही रहता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे मेंबर्स के मन में, दिल में, दिमाग में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि प्रैक्टिस में हम और क्या कर सकते हैं, किधर हमारा स्पान जा सकता है, हमारे लिए और उपयोगी और काम की बातें क्या हो सकती है। लुकिंग इनटू द माइंड all these type of thoughts, our dynamic chairman CA Nilesh Gupta has framed a program that is called Kaam Ki Baat. Friends, apart from our regular knowledge updation and upgradation, we are here for discussing various things about our Kaam Ki Baat. So, this very first program of the Kaam Ki Baat series, we have with us our faculty CA Naveen Khandelwal sir ji. I welcome you here, sir. And today's program moderator is CA Rohit Khandelwal ji. I also welcome CA Rohit Khandelwal ji. And of course, our dynamic chairman CA Nilesh Gupta ji and our treasurer of CIRC CA Dinesh Kumar Jain ji. So I welcome you all once again in this program. I thought there is some network issue with Nilesh sir. Nilesh sir, Chairman sir. Yes sir, yes sir. Without wasting much of our time, our listeners' time, I invite our dynamic chairman of CIRC, CA Nilesh Gupta sir, for his welcome speech. Nilesh sir. Thank you sir, thank you very much. Respected Secretary at CIRC Shashikant Chandrakar ji, Dinesh Kumar Jain ji, Treasurer CIRC, Atul Agrawal ji in absentia, Vice Chairman CIRC, and other Managing Committee member of CIRC, and very respected today's vibrant speaker, we can say, of CIRC, and young and always young, forever and dynamic speaker of my own city, Naveen Khandelwal ji. Welcome sir, and moderator CA Rohit Khandelwal ji. Very very good evening to all of you, and very respected viewers of this unique program Kaam Ki Baat. So friends, we are starting this series from today, Kaam Ki Baat. This session is purely dedicated towards the professional development, और इस सीरीज में एवरी फ्राइडे हम कुछ ना कुछ नया ऐसा लेकर के लाने का प्रयास करेंगे जिससे कि कुछ नए एवेन्यूज हमारी प्रैक्टिस के लिए हमको उसका नॉलेज मिल सके, या हमारे जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल एवेन्यूज हैं उनको किस तरह से हम नए रूप में, किस तरह से चेंजिंग सिनेरियो में, किस तरह से न्यू टैक्स रिजिम में हम हमारी प्रैक्टिस को बढ़ा सके। तो सिर्फ काम की बात को जानते हुए यह प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है। सो without taking much of time, I request all of you to kindly be here, and I'm sure कि after the deliberation of learned speaker Naveen Khandelwal ji, we would definitely enlighten towards the practice area, new practice area in NCLT practice. So with these words, thank you so much, and over to Shashikant Chandrakar ji. Thank you, Chairman sir, and definitely your vision and your thought is going a long way for our region, our members. And now I would like to hand over the session to session moderator CA Rohit Khandelwal ji. Welcome, Rohit ji. Thank you so much, sir. Our respected CIRC Chairman Nilesh Gupta ji,
Secretary Shashikant Chandrakar sir, Treasurer C. Dinesh Kumar Jain sir, an entire team of the CIRC of ICAI, and a special thanks to our guide as well as our mentor and today's speaker, Naveen Khandelwal sir. कहीं ना कहीं जब हमने काम की बात को स्टार्ट करने का सोचा तो एक थॉट प्रोसेस नवीन सर का भी था कि किस तरीके से उसको डिजाइन करना चाहिए, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए। और फर्स्ट सेशन में ही नवीन सर हमारे साथ हैं। थैंक्स टू यू सर। नवीन खंडेलवाल सर इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज वेल एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। सर बहुत टाइम से इंसॉल्वेंसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत से यंग मेंबर्स को गाइड भी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द ड्राफ्टिंग, विद रिस्पेक्ट टू द litigations, and with respect to the procedure of CIRP and insolvency and bankruptcy code. So definitely हम आज के सेशन में सबसे पहले तो नवीन सर से कुछ बेसिक चीजें जानना चाहते हैं और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स और फिर डेफिनेटली व्यूअर्स के हमारे मेंबर्स के क्वेश्चंस के लिए हम ओपन फॉर्म करेंगे। तो ओवर टू यू नवीन खंडेलवाल सर। सर you need to unmute yourself, sir. आप म्यूट हो। सर अनम्यूट करें। यस सर। ठीक है। So thank you Rohit and thank you Nilesh bhai, Shashikant ji and Dinesh Kumar ji. As the topic suggests is already very well defined काम की बात, और हम यहाँ पर एकदम फोकस सी बात करने वाले हैं towards getting an insight on different aspects of new areas of practice. And we thought that let's start with one area on which is very promising, which in the long way will surely be very useful for all the young chartered accountants. Friends, NCLT and chartered accountants, I think a very new relationship which has been defined for the last few years. और हम सबको पता है कि दौर ही कुछ अलग चल रहा है, तो कभी कभी लगता है कि वक्त ने क्या क्या किया क्या सितम, न तुम रहे न हम रहे न तुम, और शायद यही दौर चल रहा है जहां पर सब बदलाव आ चुका है। एंड व्हाई नॉट लेट्स आल्सो गिव द थॉट ऑफ ब्रिंगिंग अ चेंज इन आवर वे वी आर डूइंग आवर वर्क। सो टू स्टार्ट विथ वी थॉट दैट NCLT, then new areas of FEMA, then new areas of audit, especially with respect to information system audit. ऐसे 3-4 areas जो अभी हमने outline किए हैं, where I think in the next 1 month or so, Nilesh Gupta ji and his team would like to bring these areas and opportunity to in front of you. So friends, our topic, our agenda for today would be that I'll be talking about in the introduction of the NCLT area, the NCLT benches and the tribunal part. Certain facts which we should be aware of. I think we, as a practicing chartered accountant, I think we do miss out on this particular aspect of the facts. Probably we are going with the flow, the trend, जो बहाव चलता आ रहा है नदी का, हम उस बहाव में चलते रहते हैं। बट अगर हम फैक्ट्स को क्लोजली एनालाइज करें, आई थिंक फॉर दैट CRC ने एक प्रोग्राम भी शुरू किया है, फोर्टनाइट एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमी। एम आई राइट नीलेश जी? यस शशिकांत जी? यस सर, FNA फोर्टनाइटली न्यूज़ एनालिसिस। हाँ, तो आई थिंक ये सब फैक्ट्स हम सबको जानना बहुत जरूरी रहता है, सो दैट व्हाटएवर चेंजेस इफ वी वांट टू मेक इन ड्यू कोर्स ऑफ आवर टाइम प्रैक्टिस में बहुत बदलाव लाने पड़ते हैं, एंड वी ऑल अंडरस्टैंड द डायनामिज्म व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ practice today. So the facts analysis is very much required, and then I'll define on the scope for the chartered accountants, and plus we'll also focus on the skill sets. That's very important, friends. हम सबको scope तो पता लग जाता है, but कभी-कभी हमारे जो mapping होता है, alignment होता है कि scope के साथ हम अपने आप में क्या development करें, that is missing at some point of time. And let me tell you, it's not about that मैं बहुत सालों से कोई NCLT का प्रैक्टिस करता हूँ या इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। कभी ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल भी नहीं गया हूँ, बट एज नीट के अकॉर्डिंग व्हेन आई थॉट दैट NCLT, insolvency, these are new coming areas, I jumped into it, and for last 3-4 years जब से NCLT आया और IBC आया है, I have been regularly deeply involved in this process, and that is why I thought कि शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा ये untapped area है, which has been the ground for, ये अच्छा बैटिंग पिच है for the lawyers, and even बैटिंग पिच है for the company secretaries also.
अब हमें बॉलर के रूप में आके अपनी पहचान बनानी है इस पर्टिकुलर एरिया में. एंड आई फाइंड दैट इन द लास्ट few years, few chartered accountants have started exploring this particular area. चलिए फ्रेंड्स, अच्छे दिन की हम बात करते हैं. वी आर ऑल होपफुल एंड वी आर एवरीडे होपफुल, और हम शायद उम्मीद करते हैं हर दिन अच्छा ही दिन होएगा. हर दिन मैं मानता हूं कि मौका है कि मुसीबत है, तो शायद हम सबको पता है कि हर दिन मौका ही रहता है. तो अच्छे दिन का इंतजार नहीं करें, एंड लेट अस एक्सप्लोर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, व्हिच वी ऑल आर अवेयर. द करंट सिनेरियो इकोनॉमी की जो हम बात कर रहे हैं, वी शेप रिकवरी, डब्ल्यू शेप रिकवरी, एवरी टाइप ऑफ रिकवरी इज बीइंग फोरकास्टेड. एंड द रिबाउंड, जो हम सबको पता है, जो बाउंस बैक होता है, दैट इज मच मोर फास्टर देन व्हाट वी एक्सपेक्ट. So if the economy is bouncing back faster than our expectation, why should we be left behind? तो हमें भी शायद अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा. It's not about the first mover. कभी-कभी first mover advantage मिलता है, कभी-कभी fast mover advantage भी मिलता है. तो we all need to be now fast mover, because economy की जो रिकवरी हो रही है, शायद हम उस चीज को पकड़ नहीं पा रहे हैं. So try to understand what is happening around this in the economy. Why? Because it is important to understand the different aspects of business जो grow कर रहे हैं, कौन से business में impact आया है. ये सब analysis रोज हम पढ़ते हैं. मतलब even my colleagues, मेरे seniors जो हैं, ये सब हम लोग का रोज का काम रहता है कि हम analyze करें कि what is happening around us with respect to economy. And I think chartered accountants are now very well aware of that. Plus what we need to see is what government is doing. Government का initiation, government का focus, government का support किस तरफ आ रहा है. एंड लास्ट ईयर गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मनिर्भरता, और शायद ये एक बात पे फोकस कर रहा है इन द लॉन्ग टर्म. इफ यू सी इन द लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे समय की बात करें, तो आत्मनिर्भरता इज वेरी गुड फॉर ऑल द प्रोफेशनल्स. व्हाई? बिकॉज इट डेवलप्स एन इकोसिस्टम. एक कल्चर डेवलप करता है. किस चीज का कल्चर डेवलप करता है? एंटरप्रेन्योरशिप का, फ्रेंड्स. And as we all understand, the moment the entrepreneurs grow, हमारा business बढ़ने वाला ही है. तो आत्मनिर्भरता हो या स्टार्टअप हो, ये ऐसे इकोसिस्टम है जो हमारे भारत देश में बदलाव लाने वाले हैं, and that to change at a very fast pace. That's why I'm saying, friends, if we are just sitting and waiting for things to happen, let's not do it. शायद समय आ चुका है कि जहाँ पर अगर हम रास्ते की परवाह करेंगे तो मंजिल बुरा मान जाएंगे. ऐसा नहीं होगा. मंजिल बुरा नहीं मानेगी. आप तो बस अपने कदम आगे बढ़ाते जाएं विदाउट एनी सेकंड थॉट्स. तो आत्मनिर्भरता, स्टार्टअप्स और जितने इकोसिस्टम्स आप देख रहे हैं डेवलप होते आ रहे हैं, उसमें ऑब्जर्व करें, एंड लेट्स ट्राई टू कैप्चर सम एलिमेंट ऑफ दैट. विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिकॉज हम क्योंकि एनसीएलटी की बात करें हैं, वी नो दैट अप्लाइज टू कंपनीज, बट अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें तो एक बहुत बड़ा चेंज आया है in last 2 years with respect to the tax rate. And again, one more change which is expected because of that global tax rate phenomena. World across बात की जा रही है for a uniform tax rate. And India, I think, has already aligned themselves. धीरे धीरे, ज़्यादा दूर, समय दूर नहीं है जहाँ पर India का tax rate and the world tax rate would be same. So that is definitely going to give an edge to all the corporate world. तो ये शायद एक मैकेनिज्म होगा where we can develop that ecosystem, that culture of bringing in corporate professionalism within a businessman. इंडिया के हम सब facts जानते हैं कि if we see 100 businessmen operating in your city, I think 80-85% would be in the form of proprietor and partnership, more than that probably. And going forward, if we really want to make our presence feel, we need to convince them that somehow the corporate culture would give them a definite advantage. If the government, if the government is in line with what the world is expecting, and tax rates are very, very important areas where I think one of the criteria of understanding which structure we should start our business. Then, friends, compliances का हम शायद इन सबके भागीदार हैं, रोज जानते हैं. Compliances were never easy, though government have thought to make it easy because of whatever changes in the laws they have brought in. But we all professionals understand that the compliances are getting complicated. Now, if compliances are getting complicated, is it a good thing or a bad thing? Well, that's a question to be asked to yourself.
और मेरे हिसाब से कॉम्प्लायंसेस अगर डिफिकल्ट होते हैं तो बात तो अच्छी होती है, बिकॉज द डिपेंडेंसी ऑफ बिजनेसमैन ऑन प्रोफेशनल्स इंक्रीजेस. Now when compliances increase, what happens? That's a very natural phenomena. जब compliance increase होते हैं तो defaults बढ़ते ही हैं, और जितने ज़्यादा compliances होंगे, एक professionals के लिए ध्यान रखें, apart from the regular compliances की जब हम बात करते हैं, there are so many other small compliances with respect to corporate, और शायद ये एक negative aspect भी होगा, ध्यान रखिएगा. There's a negative aspect from the company's point of view, कि बहुत सारे लोग अब ये भी सोच रहे हैं कि why to carry a company, the companies which are really small companies which does not have any operation. तो compliances एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव भी. हमें बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा compliances मेरे लिए एज एन इंडिविजुअल कहाँ पर हिट कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली हम अपने रास्ते को बदलें. Defaults, I think again a very common phenomena across the economy. अगर हम observe करें what is happening in the economy, some businesses are really going very well, but then there are some businesses which have been impacted in last 2 years. And going forward, ऐसा forecast किया जा रहा है कि number of defaults in the world of business is going to increase. And very natural process है in a growing economy which is expected to grow at about 8 to 10%. तो defaults के percentage तो बढ़ने ही वाले हैं. Now defaults बढ़ना अच्छी बात, खराब बात, it all depends upon your thought process. We can take a look at it as an opportunity, or we can take a look at the loss of business. It is both ways. So again, compliances ho, default ho, and technology, which we all know is making inroads in our daily life. रोजी बदलाव ला रहा है टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में. तो अगर हम इन सब चीज को क्लब करें from the economic perspective till the technological developments, friends, we'll see that because of these things, वक्त कभी स्थिर नहीं रहेगा, और वक्त की खासियत है कि वो बदलता है, और वक्त बदलेगा तो हमारी किस्मत भी बदलेगी. लेकिन ध्यान रखें, शायद हम किस्मत के भरोसे तो नहीं रहते, मैं बैठ सकते हैं, क्योंकि एक मूवी मांझी मूवी में कहा गया है भगवान के भरोसे मत बैठे, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो. तो वक्त आ गया है जहां पर हमें काम की बात करने के लिए प्रयास आपसे ही शुरू करना पड़ेगा, आपको ही शुरू करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा. तो whenever you start doing new things, friends, because मैं ये बेस क्रिएट कर रहा हूं, is that you have to study, you have to observe. केवल ऑब्जर्वेशन जीएसटी के चेंजेस की बात नहीं करें, केवल ऑब्जर्वेशन इनकम टैक्स के नए पोर्टल की बात नहीं करें, ऑब्जर्वेशन एक ब्रॉडर स्केल पे करें तो आपके प्रैक्टिस एरिया जरूर बढ़ेगा. तो एनसीएलटी ने जब से कदम रखा है इस दुनिया में, और ज्यादा समय नहीं हुआ है, and people have welcomed this particular move by the government. Why? Because NCLT has bridged a particular gap, and there was a vacuum which was created, was in existence, not created, but was in existence for a long period of time, and therefore there was a need of a particular court which could fill up that particular vacuum. और जब से आया है लोगों ने इसका बहुत स्वागत किया है, and the initial mover, the first movers को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है. So what was the need for bringing in NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को क्यों लाया गया है? तो इसलिए लाया गया है क्योंकि एक सिंगल विंडो आया है. सिंगल विंडो फॉर whom? To the corporate world. A single window clearance for all the legal requirements within different laws. उस विंडो को क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ब्रॉट इन दिस NCLT. Because NCLT के पहले जो सिनेरियो हुआ करता था, I think we all should be taking, going to the past. हम अपने पास्ट पे जरूर जाएं, मतलब NCLT के पास्ट पे जरूर जाएं कि क्यों लाया गया है. And then you will understand that because of various reasons, that is including the CLB, ROC, Regional Directorate, and the number of cases, and High Court में जो pressure होता था, उसकी वजह से NCLT लाया गया है. Then because it's dedicated towards corporate, so natural है कि speed बढ़ने वाली है, and High Court के work को delegate कर दिया गया है to a new tribunal. So prime reasons अगर हम देखें, it's a single window clearance for all the corporate related matters, which was initially given to the CLB and the High Court. High Court में कुछ बड़े matters जाते थे, CLB में कुछ matters जाते थे. Now CLB has been abolished and NCLT उसका role play कर रही है.
Regarding the overall structure of tribunal across India, it was initiated in 2016, I think. 2016 में ही मेजर इसका रोल आया है, the day when IBC came into existence. And after that, we have seen the number of benches continuously increasing. Year by year, there is an addition of benches. And going forward, we expect the number of benches to increase. और जहाँ शुरू में करीब 7-8 benches थी, आज मेरे ख्याल से 14 to 16 benches हैं. The more important aspect is, friends, ये हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि जो benches increase हो रही हैं, that is not only located, limited to the metros part. And it has spread its wings. अगर हम उसके हाथ की बात करें तो उसने हाथ बहुत जगह फैला लिए हैं. So it has reached to the cities of Cuttack, Jaipur, Allahabad, going forward इंदौर में आने वाला है, कोची में है. तो ऐसे करके उसने I think अमरावती में एक बेंच है. तो slowly it is gradually increasing and spreading to cities where nobody could expect that यहाँ पर ट्रिब्यूनल का काम आएगा. And that's where we need to focus in, friends. एक बहुत बड़ा advantage है to 2-tier cities and 3-tier cities जहाँ पर localized level पे ये काम आने वाला है. So that is again one of the facts which you should be aware of. हम सोचते हैं ट्रिब्यूनल है तो एक high level का काम होगा, but that is not the case here. Apart from NCLT, we have the NCLAT, which is the appellate tribunal for NCLT, and for any matters which are appealable, we can always approach to NCLAT. And remember, one very important aspect in this whole structure of tribunal which has been created is that after NCLAT, it is directly the Supreme Court where you can take up the matters. So there is a missing element of High Court. So that is why the process has been speedy, with respect to especially the IBC matters ज़्यादा, जहाँ पर एक layer eliminate करने से हमारा काम थोड़ा fast होने लगा है. So that's again one of the advantages, that is the spread of tribunal across this country. Composition की बात करें, I think nothing हमारे लिए इतना मायने नहीं रखता है, but yes, we should be aware of the basic things of NCLT. So the composition is always of the president, as it happens in other branches also. And there is a judicial member and a technical member which heads this particular tribunal. And there are requisite qualifications which are required, and they become a judicial member, a technical member. Now, एक बड़ी important चीज़ है, focus करने वाली बात है, especially for those chartered accountants who are senior and those who are looking for a career change with respect to the future part, जो senior हो चुके हैं, 40-45 plus में आ चुके हैं, so they can also think of getting into the world of tribunal and becoming a technical or judicial member. That's also a possibility. तो इसलिए ये qualification आप पढ़ सकते हैं कि what is the qualification required, and later on after 5-7 years you can always think of becoming a judge in this tribunal part. Scope की बात करें, tribunal has been given a lot of powers, and जो एक काम करने का तरीका होता है कोर्ट का, normally all those processes are being applied to the world of tribunal. जो एक structure होता है, format रहता है. So the rules have been laid down in the Code of Civil Code, and it is guided by normal judiciary regulations. But the more important part is, friends, what we need to focus is again where the tribunal has been given certain kind of different treatment, that tribunal and the appellate tribunal has the power to control their own procedure. ये सबसे खास बात है. तो इसलिए NCLT rules बनाए गए हैं जहां पर इस ट्रिब्यूनल को भी बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं, and within those powers they can rule out any judgment also. तो ये एक बहुत बड़ी खास बात है इस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल के लिए. तो जब हम पढ़ते हैं लॉ को तो we also should read the NCLT rules. तो कहीं पर हमें मौका पड़े यूज करना पड़े तो we can use those NCLT rules. And the power is such that आज के दिन में कोई भी सिविल कोर्ट को इसका jurisdiction नहीं दिया गया है, that they can take up any matters related to any suit or reference with respect to any order passed by the tribunal or the appellate tribunal. तो ये हमारा scope है ट्रिब्यूनल का. And jurisdiction की बात करें तो ट्रिब्यूनल का jurisdiction वहीं पर lie करता है where the registered office of the company is situated. That is the jurisdiction. तो jurisdiction, scope, इन सबको देखते हुए आने वाले समय में my gut feeling is that if
if you have that knack of debating, वो आप जज कर सकते हैं कि आपकी डिबेटिंग की कैपेबिलिटी क्या है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको समझ में आ जाएगा घर से ही कि आपकी क्या पावर है डिबेटिंग की। तो वहां से आपको एक हिंट मिल जाता है कि वेदर यू हैव दैट knack of debating, arguing, तो जरूर इसमें कदम रख सकते हैं। तो दिस वाज अ जनरल बेसिक बैकग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड ऑफ NCLT। इसके बाद आई थिंक वी कैन लीव द मेक द हाउस ओपन। रोहित, दैट इज द बेस्ट वे, जहां पर हम जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे बोल सकते हैं प्लीज आस्क क्वेश्चंस on the scope areas of NCLT practice, not going into very specific technicals of the section part। हम केवल एक जनरलाइज डिस्कशन कर सकते हैं कि किस किस एरिया में हमारे यहाँ स्कोप आ सकता है, राइट? सो ओवर टू यू रोहित। रोहित म्यूट हो, रोहित म्यूट हो, म्यूट। कुछ लोगों ने रेज हैंड किया हुआ है रोहित, आई डोंट नो। रोहित, उनको अपन बाद में क्वेश्चन ले लेंगे, अभी तो आप आपके प्रश्न को कुछ होता है। यस, सभी मेंबर्स को मैं बता रहा हूं, पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं सर। यंग मेंबर्स के जो थॉट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, और फिर डेफिनेटली जितने भी मेंबर्स अटेंड कर रहे हैं वो डेफिनेटली अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली हम उनको एड्रेस करेंगे सर। तो सर सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेंबर्स का एक जनरल क्वेश्चन ये रहता है कि मैं अभी प्रैक्टिस में हूँ, जहां भी हूँ, जिस तरह से भी मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस या कुछ और भी काम, नाउ सडनली NCLT कम्स इनटू पिक्चर। तो मैं अभी जहां भी हूँ, जैसे जिस भी तरीके से हूँ, हाउ टू स्टार्ट, मैं अभी इस तरीके इस पोजीशन में कैसे स्टार्ट करूँ? ठीक है। तो आई थिंक एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट वी नो दैट हमें कहाँ से शुरुआत करनी थी कोई भी चीज की, बट हो सकता है कि बहुत सारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कभी कभी एप्रीहेंशन रहता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, एंड पीपल आर वरीड अबाउट फ्यूचर की, या फ्यूचर में किस तरह से हमारा करियर शेप होगा। तो लेट मी अगेन टेल यू फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी प्रूवन फैक्ट, मुझे कुछ कहीं बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा टाइम आएगा, सबका टाइम आता है और आपका भी टाइम आएगा। तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा फ्यूचर में करियर कैसा शेप होगा, प्रोस्पेक्ट है कि नहीं, अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एवरीबडी विल हैव देयर टाइम, सो जस्ट वेट फॉर दैट, दैट्स वन थिंग। सेकेंड एस्पेक्ट इज फ्रेंड्स, क्या होता है, हम बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, स्पेशली द यंग वंस, की सर कौन से रास्ते पे जाना है, वेदर इट्स टैक्सेशन, ऑडिट, consulting, finance, there's a lot of confusion and people give a lot of thoughts on the process, the clarity, or सर ये लाइन बड़ा सही है और इसी लाइन में मेरा फोकस है, बहुत सारा मैंने रिसर्च किया, एनालिसिस किया है, दैट्स फाइन। मतलब ऐसे लोग भी बहुत सारे होते हैं जो बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं, और कभी कभी कोई लोग ऐसे ही किसी ट्रेन में चढ़ जाते हैं, और वो जो बॉम्बे की ट्रेन होती है जहाँ पर एक बार चढ़ जाओ तो आपके गंतव्य तक पहुंचा देते धक्का मुक्के मार के, तो ऐसा भी होती है। और कभी कभी कोई गलती से भी उस ट्रेन में चढ़ जाता है तो भी कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। तो फ्रेंड्स, एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर करियर, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर के एरिया, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वी ऑल नो दैट जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, तो वो अपने आप ही हमें समझ में आ जाएगा और फोकस भी हो जाता है। कोई गलती, कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर आपने कोई गलत रास्ता चुन लिया हो आज की डेट में, वो गलत रास्ता भी आपको कहीं ना कहीं पहुंचाएगा, एंड विद दैट थॉट दैट हमारा टाइम आने वाला है। तो स्टार्ट करने का कोई समय नहीं होगा, कोई समय नहीं है, एंड लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस इज गिवन, दैट्स गुड, आप जरूर समय दें, बट आई ऑलवेज बिलीव कि गेट मूविंग, गेट मूविंग मतलब एक्शन लेना शुरू करते हैं, दैट्स वेयर यू नीड टू स्टार्ट, गेट मूविंग। यस सर। ओके सर। सर दूसरा जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये कि ठीक है, NCLT आ गया, एक ट्रिब्यूनल है, तो कौन से केसेस, स्पेशली क्या लिटिगेशन वाले केसेस ही या केवल इंसॉल्वेंसी वाले केसेस ही, तो कौन से केसेस हैं जो हम NCLT में ले जा सकते हैं? यस, आज अगर NCLT के हमने स्कोप की बात की, हमने जुरिसडिक्शन की बात करी, नॉर्मली एक परसेप्शन है, I think all people have that perception when it comes to NCLT. It must be in relation to companies, and when it is companies, so it is obviously the Companies Act. That's fine.
But when you are aware of the developments which are happening across the country with respect to laws, तो हमें समझ में आएगा शायद NCLT का दायरा is going one step ahead also. So apart from the world of corporates जहां पर हम बात करते हैं, NCLT में दो तरह के लोगों को अप्लाई किया जाता है, स्कोप अपना डिटरमाइन करता है. One is corporates, but the other aspects which is now quite frequent in the news is about the personal guarantor to the corporates. तो दो लोगों के लिए हम NCLT पे जा सकते हैं, two aspects पे, corporates, that is Companies Act, and guarantors individual level पे जिन्होंने गारंटी दी है, and under Insolvency Act, IBC Act, they can be taken to NCLT. That means NCLT के थ्रू ही उनके जजमेंट्स होंगे, उनके डिसीजंस होने वाले हैं. So very important friends, let us really not get focus कि यार हम corporate world की ही बात करें. If you are having a client who is having a partnership firm or a proprietorship firm, but if it is dealing with corporate, अगर वो corporate से भी deal करता है तो शायद उसके लिए NCLT एक जरिया हो सकता है. तो ऐसा नहीं कि आपके पास client corporate वाले ही होने चाहिए, not necessarily. So if you have clients of sufficient nature of partnership, proprietorship, individual, but those who are dealing with the corporate world, शायद हम उनको भी कुछ ideas, suggestion दे सकते हैं. One, individual clients हैं जिन्होंने गारंटी दे के रखी है with respect to any company which has taken a loan from any bank and which is under difficult situation. और आज नहीं भी है difficult situation, तो मेरा मानना है कि today as a chartered accountant you can give lot of consulting practices with respect to your guarantee for a corporate. So दो aspect पे हम ध्यान रखें, NCLT apply होता है, इसका jurisdiction lie करता है, corporates and personal guarantee, that means individual पे भी apply होता है, और partnership firm पे भी. Yes. Okay sir. So sir, जितना समझ में आ रहा है अभी, क्या ऐसा भी कंक्लूड कर सकते हैं कंपनीज एक्ट ही ज्यादा है? रोहित, अगर हम NCLT के केसेस देखें, बहुत सिंपल है. आप NCLT की वेबसाइट पे जाइए एंड व्हेन यू लॉग ऑन टू द NCLT वेबसाइट, और जितने भी बेंचेस चल रहे हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, और अगर ब्रॉडर थॉट प्रोसेस डालना हो तो यू कैन विजिट द NCLT मुंबई और दिल्ली, और उनकी डेली कॉज लिस्ट देखें. डेली कॉज लिस्ट आती है कि रोज कौन कौन से केसेस सुने जा रहे हैं, एंड व्हेन यू ओपन दैट कॉज लिस्ट जहां पर लिस्टिंग होती है केसेस की, एंड जस्ट एनालाइज, एंड यू एनालाइज द नंबर ऑफ केसेस. लेट्स से आज मुंबई बेंच 1 में करीब अगर 50 केसेस हैं, and out of that 50 cases if you analyze how much is related to company law, how much is related to individual personal guarantor, and how much is related to insolvency, तो आपको समझ में आएगा that ratio कितना है. तो ratio today is about 60% with respect to insolvency, 35% with respect to company law, and last 2 महीने में 2-1% अभी individual guarantors पे अप्लाई होना शुरू किया है. So the best way to analyze the working, the scope and areas of practice under NCLT is analyze the cause list of each of the benches. Probably आपका आइडिया है. तो जैसा आपने कहा कि क्या ये कंपनी लॉ पे अप्लाई होता है, तो आंसर इज यस, कंपनी लॉ पे तो अप्लाई होगा. बहुत सारे स्कोप है कंपनी लॉ में, बट अपार्ट फ्रॉम द कंपनी लॉ आई थिंक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. So let us now focus on the areas under company law and the areas under insolvency, which will highlight that going forward कितने सारे scope areas हो सकते हैं for practicing in the world of NCLT. तो अगर हम कंपनी लॉ को उठाते हैं, probably as chartered accountants, I think out of 100 chartered accountants अगर हम सैंपल लेंगे तो 15 से 20% होंगे those who deal in company law work, and that too they are involved in more of the routine ROC compliances part. And when you do the routine ROC compliances part, probably we miss out on certain important sections of company law which generates better work, more value added work
rather than being involved in the compliance work. तो कौन से ऐसे सेक्शन है जहां पर बहुत सारे केसेस की लिस्टिंग होती है अंदर एनसीएलटी एंड यू हैव टू टेक अप दैट मैटर एट एनसीएलटी. सो लेट अस फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट. तो एनीथिंग व्हिच रिलेट्स टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यानी बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होने लग गया है व्हेन यू सी डीमैट ऑफ शेयर्स हैपनिंग अक्रॉस. अभी तो हम सबको पता है डीमैट किस पे अप्लाई होता है, बट गोइंग फॉरवर्ड हम सबको रियलाइज हो रहा है दैट अगर हम जितने भी प्राइवेट कंपनीज के होल्डिंग्स के शेयर्स हैं उनको भी अगर हम डीमैट कराने लग जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा. And when you start taking up this activity of converting all your physical form of shares into electronic form, then the problem starts coming in. That you'll find that कि मेरा नाम रजिस्टर मेंबर्स में नहीं है, या ट्रांसफर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ प्रोसेस इश्यूज हैं. So then it is only through NCLT you will get it resolved. That is section 59. तो ऐसे मैटर्स अब थोड़े आने लगे हैं. Reduction of share capital is another area, but then this is limited to very limited domain of corporate which wants to reduce their share capital. बहुत ही small angle है, तो शायद हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे. बट फॉर रिडक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर कैपिटल हम एनसीएलटी रूट ही अप्लाई कर सकते हैं. बट फ्रेंड्स, लेट अस फोकस ऑन द ब्रॉडर एस्पेक्ट. और मैंने ऑब्जर्व किया है लास्ट 3 सालों में, दिस इज वन एरिया फ्रेंड्स, दिस पर्टिकुलर सेक्शन, जहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स शुड एक्सप्लोर एंड डेफिनेटली करना ही चाहिए उनको, इज द एक्सप्लोर वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्रोमाइज रीस्ट्रक्चरिंग. एक इतना बड़ा वैक्यूम है कॉम्प्रोमाइज एंड रीस्ट्रक्चरिंग का अंडर सेक्शन 232 to 225, which talks about mergers, demergers, restructuring of the company's business, and the volume of work which is being generated, which I can see from 0 to around 5% of the cases, 5 to 7% of the cases under NCLT coming under this particular section. तो जहां पर 0 होता था, बहुत कम होते थे, वहां 5-7% हुआ. एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हेन यू विल एजुकेट द क्लाइंट, तो ध्यान रखें बहुत जरूरी है अपार्ट फ्रॉम हमारा नॉलेज गेन करने के लिए क्लाइंट को एजुकेट करना. और शायद हम वहाँ एक मिसिंग एलिमेंट हो जाता है. इट्स नॉट अबाउट कि हम नहीं करना चाहते, टाइम के फैक्टर रहता है, बट एक बहुत जरूरी एलिमेंट हो गया कि हम क्लाइंट को एजुकेट करें. जैसे यू आर ऑल्सो रजिस्टर्ड वैल्यूअर, तो आपको समझ में आता है क्लाइंट इस चीज को समझता ही नहीं है, बहुत दिक्कत आती है. तो क्लाइंट एजुकेशन बहुत जरूरी हो गया है. तो मर्जर एमलगेमेशन की हम बात करें, नॉर्मली जैसे मर्जर एमलगेमेशन की हम बात करते हैं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के दिमाग में बात आ जाती है दैट मर्जर एमलगेमेशन इज द बिग बॉयज गेम, बड़े लोगों का काम है, बट ऐसा नहीं है. व्हाट आई हैव सीन दैट टुडे मर्जर एंड एमलगेमेशन छोटे छोटे कंपनियों का हो रहा है, स्मॉल कंपनीज का हो रहा है. तो ये मर्जर एमलगेमेशन का जो प्रोसेस है, स्टेप्स है, and the consulting opportunity which is required, and that is only possible through NCLT, उसके बिना हो ही नहीं सकता है. तो I have seen good practicing company secretaries, lawyers getting lot many work, and that too उनके clients क्या नहीं, बाहर के clients का काम उनको मिल रहा है. Why today we know that, मैंने जैसे पहली स्लाइड दिखाई थी, it is very important to understand the economic the facts around us. तो अगर मैं आज किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछूं कितनी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं इंडिया में, तो शायद मे बी 2-3 मे बी एबल टू आंसर इट. बट अगर हम पूरा एनालिसिस करें कितनी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, कितनी एक्टिव हैं, कितनी डिफंक्ट हैं, कितनी डमी इन द सेंस वेयर द नो ऑपरेशंस आर बीइंग कैरिड ऑन, जिसमें कोई रेवेन्यू नहीं है, प्रॉब्ली दे हैव बीन क्रिएटेड फॉर अ पर्पस, नाउ दे वांट टू दे आर नो बिजनेसेस बीइंग कैरिड ऑन. अगर हम इसका एनालिसिस करेंगे तो around 50% of the companies कुछ ऐसी तरीके आएंगे. Now when 50% of these companies are of such nature where it does not make any sense going forward to remain that company, continue that company as in the structure of a company, then what do we do with that? So the option comes in that we can either merge it or we can liquidate the company. तो मैं ये देख रहा हूँ लास्ट 3 सालों में इतनी सारी कंपनीज मर्ज हो रही हैं, अमलगमेट हो रही हैं, फॉर ओनली दोज रीजंस कि आज मुझे कंपनी को कैरी नहीं करना है,
एंड मिनिमम फीस जो चार्ज हो रही है स्टार्ट्स फ्रॉम, कंसल्टिंग फीस बात कर रहा हूं मैं, दो कंपनियों का भी अगर मर्जर की बात करूं तो 2 लाख से लेके 1.5 2.2 लाख से लेके 10-15 मतलब लाखों की बात होती है यहाँ पर. So this is one area, friends, where as chartered accountants we should focus on definitely. And इसमें मैं बता दूं, अपार्ट फ्रॉम मैं बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या स्किल सेट्स होगा, बट अपार्ट फ्रॉम दो स्किल सेट्स इट्स मोर ऑफ प्रोसेस ड्रिवन है. स्पेशली प्राइवेट कंपनीज को मर्ज करना है तो हमें एक प्रोसेस फॉलो करना है, एंड इफ यू फॉलो दैट प्रोसेस आपको बहुत सारे काम मिलेंगे. चलिए, एक और एरिया जो बहुत कॉमन होने वाला है और हम सबको पता है, ये एक एरिया है जो अपार्ट फ्रॉम दी वर्ल्ड ऑफ कॉर्पोरेट, ये पर्सनल लाइफ पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा. सो इट्स ऑल अबाउट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट बिकॉज ऑफ वॉट एवर वी सी अराउंड अस. तो इमोशनल क्वोशंट, स्पिरिचुअल क्वोशंट, इंटेलिजेंट क्वोशंट, ये जो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है इन चीजों का, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज लैक ऑफ क्वोशंट्स वी हैव दी फाइटिंग क्वोशंट डेवलप हो रहा है कि हमें लड़ने में जो हाई मिलता है, किक मिलता है, उसका मजा कुछ अलग होता है. रोहित, तो रोहित, ये जो सेक्शन है 241 242 ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का, अगेन it is being used as a tool for different purposes, and operation mismanagement के केसेस केवल NCLT में ही हो सकते हैं. उसके थ्रू, उसके बिना हम कहीं झगड़े की बात ही नहीं कर सकते हैं. तो 241 242 बहुत फ्रीक्वेंट हो गया. आई थिंक द मोस्ट प्रॉमिसिंग ऑफ द केस वाज अगेन इन टाटा के केस में हुआ था. मिस्टर मिस्त्री के जो केस हुए थे वो शायद इसी सेक्शन के थ्रू ही फाइट किए गए थे. तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, बिकॉज वी नो, एक मैं आपको फैक्ट बताता हूं जो शायद सबको पता हो, ये जितने स्टार्टअप्स बने हैं, ये स्टार्टअप्स किनके बीच में बने हैं? शायद अगर हम स्ट्रक्चर देखें अपने बिजनेस का, तो पुराने बिजनेस वर मोर ऑफ फैमिली बिजनेसेस, और ये स्टार्टअप है, इट इज नॉट फैमिली बिजनेसेस. स्टार्टअप्स आर फ्रेंड्स बिजनेसेस, जब दोस्त आपस में मिलते हैं और कहीं ना कहीं वो दिल चाहता है जिंदगी मिले ना दोबारा को हम देखते हैं, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं डिफरेंसेस तो आते ही हैं. और जब वो डिफरेंसेस आते हैं, द ओनली वे आउट, एंड व्हेन डिफरेंसेस एंड ईगो कम टुगेदर, तो शायद द ओनली वे आउट इज फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर. तो गोइंग फॉरवर्ड जब स्टार्टअप कल्चर बढ़ेगा, और जैसे स्टार्टअप कल्चर बढ़ता है तो आपको दिखेंगे ये केसेस ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट. सो 241 एंड 242 again is one area where we obviously थोड़ा हाई लेवल की चीजें रिक्वायरमेंट है, बट देन ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है. क्लास एक्शन शूट्स, अगेन हमारे कंट्री में एक नया प्रोविजन है जो यूएस में बहुत कॉमन फिनोमेना है, तो ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूंगा, बट क्लास एक्शन शूट्स एक नया फिनोमेना है, एंड आई थिंक ये सब एरियाज हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक्सप्लोर करना ही चाहिए, स्पेशली इफ यू आर एट बिगर सिटीज. तो ये तो बहुत कॉमन फिनोमेना होने वाला आने वाले टाइम में. फ्रेंड्स, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस. अभी तक क्योंकि स्कीम चल रही थी गवर्नमेंट की, तो देयर वाज नॉट मच ऑफ स्कोप इन कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, बट जितने कंपनी सेक्रेटरीज हैं जिनसे मेरी बात होती है, उनका ये कहना है दैट गोइंग फॉरवर्ड ये कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के केसेस अब बढ़ने वाले हैं. व्हाई? शौक में हम सब कुछ कंपनियां तो बना लेते हैं, एंड एज ए कंसल्टेंट हम भी एडवाइस कर देते हैं, बट आज की डेट में सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम इज टू मेंटेन. एंड नाउ बिकॉज ऑफ ऑल दी, एज आई एक्सप्लेन अगेन, मेरी फर्स्ट स्लाइड इज वेरी रेलेवेंट, इज अबाउट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी, द फैक्ट्स, द इकोनॉमिक परसेप्शन, लोगों का परसेप्शन. तो लास्ट 2 सालों में हम सबको पता है देयर बीन लॉट ऑफ डिफॉल्ट्स एंड कंप्लायंस लेवल हाई हैं. देन स्कीम सब खत्म हो चुकी है, नए वर्जन आ गए हैं MCA के, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज लिमिटेशंस प्रॉब्ली बहुत सारे डिफॉल्ट के कारण हमारे पे पेनल्टी हैवी होने वाली है. एंड जब पेनल्टी हैवी लग जाएगी तो वी डोंट हैव अ चॉइस एक्सेप्ट फॉर कंपाउंडिंग. एंड इफ यू वांट टू कंपाउंड ऑल योर ऑफेंसेस, NCLT का ही रूट अपनाना पड़ेगा. तो अगर आपके क्लाइंट बेस में कॉर्पोरेट वाले लोग ज्यादा हैं, और उनमें अगर आप एनालाइज करेंगे, इफ यू फाइंड दैट अराउंड 5-10% ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लायंसेस नहीं किए हैं, तो गेट रेडी फॉर इट.
एक 252 दोबारा कॉमन रहा है, बट 271 फ्रेंड्स अगेन 271 सेक्शन अगर आपको नहीं पता हो तो लेट मी टेल यू, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ओनली लास्ट ईयर 1 अप्रैल 2020 से ही वाइंडिंग अप रूल्स आए हैं. दैट मीन्स टुडे एक हमारा नया एरिया स्कोप आ चुका है अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ वाइंडिंग अप, जो अभी तक नोटिफाई नहीं था. एंड द डे इट वाज नोटिफाइड, मैंने देखा है सडनली, सी कोई भी नया चेंज आता है तो सडनली कुछ एनसीएलटी मूवमेंट दिखने लग जाते हैं. अगर आपने कोई सफारी की हो कोई भी सेंचुरी पार्क में, तो आपको दिखना कि आसपास कोई अगर टाइगर या बड़ा जानवर तो मूवमेंट आने लग जाते हैं, दिखने लग जाते हैं, एंड यू गेट अवेयर. यही चीज आपको यहाँ पर करनी है. मूवमेंट कॉज लिस्ट से देखें कि क्या 271 का पीपल आर यूजिंग इट. सो यू विल फाइंड दैट यस, फ्यू ऑफ केसेस बीइंग लिस्टेड अंडर 270. तो ये शुरुआत है, इट इज जस्ट द स्टार्ट, एंड देन लेटर ऑन इट विल गेन मोमेंटम. 271 is one area where we have situations of winding up, and winding up की कुछ conditions दी गई हैं that if you want to wind up then there is a possibility through the NCLT route. तो रोहित, ये जो मैंने एरियाज बताए हैं ये प्योरली कंपनी लॉ के बताए हैं, और ये तो एक मेन सेक्शंस की बात की है जहां पर ये मेन हीरो हीरोइन काम कर रहे हैं. और हमको पता है पूरी मूवी बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे एक्टर्स लगेंगे, तो बहुत सारे सपोर्टिंग एक्टर्स रहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सपोर्टिंग सेक्शंस होंगे जहां पर एनसीएलटी के रूट के थ्रू ही वो परमिशन चाहिए या कोई माफी चाहिए, तो वो एनसीएलटी के थ्रू ही मिलता है. तो people have started exploring all those sections and utilizing the section for the benefit of the client. Now, apart from company law, friends, हम बात करें तो एक बहुत बड़ा एरिया है इंसॉल्वेंसी का, and I think it is very common, which everybody knows that insolvency act कितना बड़ा scope लेके आया है. Obviously, you see it from outside. I being an insolvency professional, I know that what are the challenges in that. But anyway, हम माने अभी तो स्कोप है, हम उसके फोकस नहीं करते कि स्कोप रहेगा कि नहीं रहेगा. बट अंडर इंसॉल्वेंसी अगेन यू विल फाइंड दैट देयर लॉट ऑफ सिनेरियोज वेयर एज एन इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहा हूं, जहां पर आपके पास अगर क्लाइंट है, इवन इफ इट इज एन इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म, ही शुड बी अवेयर ऑफ दिस लॉ एंड इवन ही कैन अप्रोच एनसीएलटी फॉर फाइलिंग अ केस अगेंस्ट द कंपनी. तो आईबीसी में प्राइमरीली इनिशियल हम पॉइंट बात करें, प्रैक्टिस के स्कोप की बात करें, बहुत ये बेसिक सेक्शन है, सेक्शन 7, 9 एंड सेक्शन 10. ये 3 एरियाज से हमारे आईबीसी की प्रैक्टिस शुरू होती है. वेयर इफ देयर इज अ डिफॉल्ट कमिटेड बाय एनी कंपनी, देन द बैंकर्स कैन फाइल अ सेक्शन अंडर सेक्शन 7, और ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं, दे कैन फाइल अ सेक्शन केस अगेंस्ट द कंपनी इन एनसीएलटी 9, और सेक्शन 10 रहता है जहां पर कंपनी खुद जा सकती है. तो अगर 3 सेक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर ब्रिंगिंग अ कंपनी अंडर इंसॉल्वेंसी अंडर एनसीएलटी, तो 3 सेक्शन आर मोर देन इनफ. तो इससे समझ में आता है कि कितने केसेस हो सकते हैं. ऑब्वियसली कुछ चेंजेस हुए लॉ में विद रिस्पेक्ट टू दी लिमिट ऑफ 1 करोड़ ही होगा डिफॉल्ट का, तभी ला सकते हैं, विच वॉज चेंज लास्ट ईयर. बट इवन 1 करोड़ आई थिंक ऐसा नहीं है कि जस्ट रिड्यूस द स्कोप. इवन 1 करोड़ में भी कुछ इनफ केसेस आ सकते हैं विच कैन सस्टेन योर प्रैक्टिस. So section 7, 9 और 10 ऐसे 3 prime sections हैं. These are prime sections. Now if we take a deep down in the world of insolvency, जैसे मैंने कहा कि हमनी लॉ में बहुत सारे एनसीएलटी सेक्शन होंगे, तो अगर मैं डीप डाउन करूं इस पूरे वर्ल्ड ऑफ इंसॉल्वेंसी में, देन अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे अदर सेक्शन आएंगे जिसमें डिस्कशन करता हूं. बट रोहित, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो शायद हम मिस आउट करते हैं कभी कभी. हम एक नजरिए से देखते हैं, मैं बात कर रहा हूं कि प्रैक्टिस में अपॉर्चुनिटीज, मैंने बोला सेक्शन 7 में एप्लीकेशन फाइल करना. नाउ दैट इज वन एस्पेक्ट. अदर एस्पेक्ट ये है कि एप्लीकेशन के अगेंस्ट किसी को फाइट भी तो करना पड़ेगा ना. सो हम देखें दूसरा नजरिया भी होता है कि हमारे लिए स्कोप कहां पर बात करें. स्कोप ऐसा नहीं है कि हमें किसी के अगेंस्ट, हमें किसके अगेंस्ट लड़ना है, तो दूसरा एस्पेक्ट होगा भाई वो भी तो आपको हायर करेगा फॉर फाइटिंग फॉर हिम. तो 2 एस्पेक्ट होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट वाला एस्पेक्ट यहाँ पर होगा. तो जितने सेक्शन फाइल होंगे, जितने एप्लीकेशन एनसीएलटी में फाइल होंगे, उसका एक दूसरा पहलू भी होने वाला है. उस पहलू को अटेंड करने के लिए भी हमें एनसीएलटी में जाना पड़ेगा, एंड फॉर दैट आल्सो वी नीड सम कंसल्टेंट टू अपीयर एट एनसीएलटी. फॉर एनी स्मॉल मैटर हमें अपीयर होने के लिए कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है. तो सेक्शन 7 में मेरे अगेंस्ट किसी ने फाइल किया तो मैं किसी को हायर करूंगा मुझे डिफेंड करने के लिए. सेक्शन 9 में भी होगा, सेक्शन 10 में भी होगा. तो एनसीएलटी में
एज एन प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट अगर हम बात करें तो दोनों नजरिए से बात करेंगे, एंड एज अ माइंड वी हैव टू वर्क एंड लुक एट बोथ वेज। ऐसा नहीं होगा कि मैं केवल क्लाइंट के बिहाफ में बात करूंगा, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स में एक ही तरफा बात करूंगा, ऐसा नहीं होगा। यू कैन डिफेंड बोथ द वेज। तो सेक्शन 7, 9 और 10 है। इसके अलावा अगर मैं लिस्ट डाउन करना चाहूँ तो ऐसे इतने सारे सेक्शंस हैं हमारे आईबीसी में, where normally you will see the applications been filed. Be it section 19 एक बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, सेक्शन 19 एप्लीकेशन फाइल होती है। सेक्शन 30 भी अगर हम एनालाइज करें तो 20% केसेस में फाइल होगा, आउट ऑफ 100 केसेस पेंडिंग एट एनसीएलटी 20% केसेस में होने ही है। सेक्शन 60 भी आई थिंक मोर देन 50% ऑफ द केसेस में सेक्शन 60 की एप्लीकेशन जाती है, मोर देन 50% ऑफ द केसेस में। देन सेक्शन 33 में मानता हूं अगर इन 50% ऑफ द केसेस में सेक्शन 33 की दैट इज लिक्विडेशन की एप्लीकेशन होती है। सेक्शन 60 इज ऑल अबाउट टेकिंग डायरेक्शंस फ्रॉम एनसीएलटी। कुछ भी हमें नहीं समझ में आ रहा हो पूरे प्रोसेस में, आई कैन अप्लाई टू एनसीएलटी और मैं पूछूं भैया मुझे बताएं एज अ कोर्ट यू प्लीज गिव मी डायरेक्शंस। सेक्शन 30 इज ऑल अबाउट जहां पर मुझे रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया उसका अप्रूवल चाहिए तो उसके लिए एनसीएलटी जाना पड़ता है। सेक्शन 19 इज ऑल अबाउट जहां पर मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो सपोर्ट मांगने के लिए मैं एनसीएलटी में जाता हूं। देन पीयूएफई ट्रांजैक्शंस होते हैं, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस के बारे में अगर हमें कुछ केस फाइल करना हो विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज अंडर इंसॉल्वेंसी में जो कंपनीज है उनके लिए ही मैं बात कर रहा हूं। तो उसके लिए अगर मुझे समझना हो तो पीओ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस के एप्लीकेशंस फाइल होते हैं। एंड 65 to 70 इज वेरी जनरल क्लॉज है जहां पर हम हाई लेवल मतलब हायर जा रहे हैं, जब फ्रॉड हो रहा हो उसकी बात करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो आने वाले मैं देख रहा हूँ इन द लास्ट 1 month इसमें एक्टिविटी बढ़ गई है एंड नेक्स्ट 6 months में बहुत ज्यादा एक्टिविटी होने वाली है। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल्स। सेक्शन 95 है, 94 से 96 वाले सेक्शंस हैं जहां पर बैंकर्स आर गेटिंग वेरी एक्टिव। आई थिंक पेपर में कल परसों न्यूज थी जहां पर बैंकर्स हैव इनिशिएटेड insolvency proceedings against personal guarantors of lot many top 20 companies। तो वो एक बहुत बड़ा एरिया होने वाला है और यहाँ पर इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट एनसीएलटी में या डीआरटी में डिपेंड्स। अभी मैं मान रहा हूँ कि उनके केसेस, कंपनी के केसेस एनसीएलटी में चल रहे होंगे, इसलिए इंडिविजुअल के भी केसेस एनसीएलटी में चलेंगे। नाउ दैट इज यू हैव टू रिमेंबर, इफ यू हैव टू फाइल एन केस फॉर एन इंडिविजुअल अंडर एनसीएलटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट द कंपनी शुड बी अंडर सीआरपी, तभी जाके एनसीएलटी में होगा। अगर सीआरपी में कंपनी नहीं है तो डीआरटी में जाना पड़ेगा, बट दैट फाइन, आई मीन लॉस तो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रवीत, अगेन ये बहुत बड़ा स्कोप आया है जिसके बहुत डिबेट किया है। द गवर्नमेंट इज ब्रॉट इन दिस पर्टिकुलर स्कीम स्पेशली फॉर एमएसएमई कंपनीज के लिए बहुत बड़ी स्कीम लेके आई है, PIRP स्कीम्स, दैट इज प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी स्कीम। अगेन बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे इसका डिस्कशन हुआ है, बट मैं एनसीएलटी प्रैक्टिस की जब बात कर रहा हूँ मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इफ यू हैव ब्रॉट इन दिस स्कीम और इस स्कीम को अगर हमें ले जाना है, इट हैज टू बी थ्रू एनसीएलटी, देयर इज नो अदर वे आउट। सो एमएसएमई, आई थिंक लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डील विद एमएसएमई and there are a lot of defaults which might be happening, so applications had to be routed through NCLT to get the process done under this particular scheme also. तो इंसॉल्वेंसी पर्सपेक्टिव की भी हम बात करें तो देयर आर सो मेनी एरियाज। और ध्यान रखें व्हेन आई टॉक अबाउट एनसीएलटी प्रैक्टिस, तो रोहित हम सबको पता है सनी देओल का फेमस डायलॉग, 2.5 किलो का हाथ की नहीं बात कर रहा हूं मैं, तो तारीख पे तारीख की बात करता हूं। तो हम सबको पता है ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में वी गेट डेट्स एंड दीज केसेस, हम सी एक परसेप्शन आता है, एक दिमाग में आता है कि सर ये तो चलिए एक बार एप्लीकेशन फाइल कर दिया उसके बाद क्या, 2 बार हियरिंग हो जाएगी उसके बाद क्या। नाउ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमको सबको पता है कि कोर्ट में टाइम लगता है। सो वंस यू एंटर इनटू दिस फील्ड देन दैट प्रोसेस, वो चक्र ना चलते जाएगी, आपका चक्का चलते जाएगा एंड इट इज नेवर एंडिंग स्टोरी। एक कहानी खत्म होएगी नहीं, और एक खत्म होगा तो शाहरुख खान आ जाएगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो दूसरी आने लग जाएगी, वो तीसरी आने लग जाएगी। तो ये सेक्शंस हमें एक जरिया, एक मोड प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इफ यू एंटर इन दिस फील्ड, ऐसा नहीं कि इट हैज गॉट अ लिमिटेड एरिया, इट इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ चलता ही जाएगा। सो कंपनी लॉ में मेन सेक्शंस प्लस एंसिलरी सेक्शन, इंसॉल्वेंसी में मेन सेक्शंस
प्लस एंसेलरी सेक्शंस। सो दो चीज को अगर हम क्लब करें तो ओवरऑल अगर हम पर्सपेक्टिव देखें, देयर आर मोर देन 25 प्राइम सेक्शन जिसकी कॉज लिस्ट में आप देखेंगे तो लिस्टिंग होती रहती है। तो आई थिंक रोहित, मैंने आपके उस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश की है कि कंपनी लॉ के साथ साथ इंसॉल्वेंसी लॉ में क्या क्या हमारा स्कोप आता है, कितने हमारे रेंजेस बढ़ जाते हैं। यस सर। सर बहुत सारे क्वेश्चंस भी मेंबर्स के भी आ रहे हैं, बस एक दो क्वेश्चंस और मेरे, उसके बाद फिर हम ओपन करेंगे। Sure. सर थ्योरेटिकल बात तो हो गई कि यहाँ केस हो रहा है एनसीएलटी में, कंपनीज एक्ट के केसेस हो सकते हैं, इंसॉल्वेंसी के केसेस हो सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, मुझे क्या क्या सीखना पड़ेगा, मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है, बट मुझे क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, मैं एंटर कैसे करूँ? सही कहा रोहित। आई थिंक ये अजब एनसीएलटी की गजब कहानी है और शायद हर प्रोफेशन की कहानी है ना, कि हम करें कैसे। और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं मेरे बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने कॉमन सेंटेंस यूज किया हुआ है कि जब तक हम उसमें कूदते नहीं शायद समझ में नहीं आता। मोहब्बत को समझने के लिए एक बार टूटना जरूरी होता है, जब तक टूटते नहीं मोहब्बत समझ में नहीं आती। तो इसीलिए इस प्रैक्टिस में कूदने के लिए शायद हमें एक बार कूदना पड़ेगा। नाउ दैट इज द ओनली थिंग, दैट हाउ टू जंप, कैसे हम जाएं। तो मुझे क्या करना रहेगा, ये थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में भी था कि यार मैं जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, बट इट नेचुरली हैपेंड। मैंने कभी सोचा नहीं कि यार कैसे होगा, इट जस्ट नेचुरली हैपेंड, बट ओनली बिकॉज आई वाज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, तो शायद वो नेचुरल प्रोसेस में आ गया। तो मैं ये नहीं करूंगा कि मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनूं, बट इसके साथ मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या चीज सीखनी पड़ेगी। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जितने भी आईटी वाले प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स होंगे जो ट्रिब्यूनल में इनकम टैक्स से काम करते हैं, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है, उनके लिए तो कॉमन चीज। सो दैट इज जस्ट ओनली अ चेंज ऑफ कोर्ट रादर देन एनीथिंग एल्स। प्रॉब्ली दे आर रेडी, मतलब प्लग इन वाला काम। जो लोग, अगर अब इनकम टैक्स में प्रॉब्लम क्या हो गई, अब हमारे केसेस फेसलेस हो गए, तो शायद वो जो वर्बल प्रेजेंटेशन का जो दौर है वो शायद खत्म हो चुका है। वो हमें सामने वाले का बिहेवियरल स्किल समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इन द आईज अभी कोर्ट में तो हमें जाके 1-to-1 ही जाके केस लड़ना रहेगा। तो एज वी ऑल अंडरस्टैंड, इन ऑल दीज केसेस ऑफ कोर्ट लॉ की नॉलेज तो होनी चाहिए। ड्राफ्टिंग स्किल्स जो मुझे लगा है दैट टुडे ड्राफ्टिंग स्किल्स जो प्रेजेंट किए जाते हैं आज की डेट में वो थोड़े कमजोर हैं, बट देन दैट हैज बीन द ट्रेंड, द सिस्टम, सो वो चल रहा है प्रोसेस। एज चार्ट अकाउंटेंट्स आई थिंक वी कैन इंप्रूव अपॉन दैट, क्योंकि हम सबको पता है इन मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जिन लोगों की ड्राफ्टिंग स्किल्स आज अच्छी है, दे शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर दिस एरिया, उसमें कोई डाउट नहीं है। डोंट गिव इट अ सेकंड थॉट, जस्ट जंप इनटू इट। तीसरा स्किल जो मेरे को डेवलप करना पड़ा, which was not there within me, मुझे नहीं, मेरे में नहीं था, but then I had to develop this, being systematic in whatever you are doing as an approach. by systematic मतलब process bound, documentation wise, step by step wise, लिखना step by step wise, जो शायद कभी कभी मिसिंग एलिमेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस टेक्नोलॉजी, व्हाट्सएप, ईमेल, जहां पर हम शॉर्टकट्स और इमोजीज को लेके सब करने लग जाते हैं, तो ये सिस्टमैटिक प्रोसेस का जो काम है वो थोड़ा लैकिंग हो जाता है। तो अगर आपकी capabilities on about being very systematic in your life schedule, then it really helps you. Presentation argument, as I said, Rohit, you can always judge. ये आप अपने ग्रुप में, फ्रेंड्स में, घर में, परिवार में, स्पाउस के साथ अपने आप को जज कर सकते हो कि आप में कितनी ताकत है, काबिलियत है अपने पॉइंट को प्रेजेंट करने की। और दूसरा होता है ताकत आर्ग्यूमेंट की भी होनी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू डिफेंड योर क्लाइंट। तो दोनों चीज, प्रेजेंटेशन एंड आर्ग्यूमेंट की कैपेबिलिटी। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो रोहित आपने कहा कि मुझे आज कहां से स्टार्ट करना चाहिए, तो ये चार चीजों को मैप करें, अलाइन करें कि यार वेदर आई एम गुड एट दिस, एंड इफ आई गेट इनटू इट, इफ आई एम नॉट गुड, हाउ डू आई इंप्रूव अपॉन दैट। तो मुझे क्या काम करना चाहिए। इन केस ऑफ ड्राफ्टिंग लॉ तो आई थिंक गुड बाय डिफॉल्ट है, इसलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, बट ड्राफ्टिंग बीइंग सिस्टमैटिक एंड बाय बीइंग प्रेजेंटेशन, इफ यू कैन मैप योर स्किल सेट्स, align yourself, then whatever you want to develop on that, आप वो प्रोसेस फॉलो करें। जैसे रोहित, आई थिंक यू मस्ट बी अराउंड 10 years of experience, और आपको लगता है 10 साल के बाद भी मैं
इसमें और क्या सीखूं, ये सब चीजें अब और सीखने की जरूरत है क्या? तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमको पता है इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। द ओनली क्वेश्चन इज दैट 10 साल के बाद मैं अगर रोहित से कहूं कि सर मैं एनसीएलटी प्रैक्टिस में जाऊं, जो मैं काम कर रहा हूं छोड़ दूं, नाउ दैट इज अप टू योर विजडम। मैं वहां पर विजडम की बात ले आऊंगा कि यार ये आपको जज करना है कि या मेरे लिए सही है कि गलत है। विजडम मतलब मेरे लिए, मैं जनरल विजडम की बात नहीं कर रहा हूँ, तो हम अप्लाई करते होंगे, बट विजडम मेरे लिए वो सही है कि नहीं है। तो ये जजमेंट ये आपका कॉल है, मैं जनरली नहीं बता सकूंगा कि आपको करना ही चाहिए। आई कैन डेफिनेटली से स्कोप है, प्रैक्टिस है। रोहित कहेगा कि सर मैं 5 साल से ज्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ, आई वुड नॉट से कि नहीं गलत है। आप 5 साल का अगर होराइजन है तो यू शुड नॉट गेट इनटू दिस प्रैक्टिस, नहीं लगे। 5 साल से ज्यादा समय लगने वाला है, तो यू नीड अराउंड 10 to 15 years of practice in this particular area and then you establish your name, right? और जब वो समय आ जाएगा जहां पर आपके नाम से ही काम होगा, right? तो उसके लिए समय देना पड़ेगा, बट एंड दीज आर ऑल डेवलपमेंट प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट 5 years। ये 5 सालों में आप डेवलप करें और मेरे ख्याल से 15 साल बाद अपने आप को एस्टेब्लिश पोजीशन पे पाएंगे। सर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि क्या एनसीएलटी में अपीयर होने के लिए, हाँ बोल, एनसीएलटी में अपीयर होने के लिए सर क्या वास्तव में मुझे या तो आईपी का एग्जाम ही पास करना पड़ेगा, या क्या एक एडवोकेट ही हो सकता है वहां जाके प्रेजेंट आर्ग्यू करने के लिए या डिफेंड करने के लिए? जैसे आप अभी बता रहे थे सेकंड साइड वाले को भी एक पार्टी चाहिए, मींस एक कंसल्टेंट चाहिए, तो हु कैन बी दैट कंसल्टेंट, वेदर इट शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और एन एडवोकेट और इट शुड बी ओनली एन आईपी? करेक्ट है। तो कहाँ से स्टार्ट करना है? देखिए मैंने अभी बताया कि स्टार्ट तो कैसे करना है, ये तो क्लियर है। अब कोई जरूरी नहीं कि हमें एनसीएलटी में जाने के लिए लॉयर हो या आईपी हो, ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज एज पर लॉ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स कैन आल्सो प्रेजेंट देमसेल्व्स इन दी कोर्ट, ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो बाय डिफॉल्ट क्वालिफाइड माने गए हैं, तो कोर्ट हैज एक्सेप्टेड अस। नाउ ओनली एप्रीहेंशन जो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों में होता है इज अबाउट द एप्रीहेंशन ऑफ अपीयरिंग इन द कोर्ट। कोर्ट में जाने का जो डर है, वो झिझक है, वही हमें हटाना रहता है। वो आई थिंक मेरे में भी था और बहुत सारे मेरे जैसे लोगों में होगा, या मेरे जैसे लोगों में नहीं भी होगा। तो अगर नहीं है then you don't need to wait. I think your path is directed towards that court. जाइए प्लीज। जाने के बाद क्या हो जाती चीज नहीं, आई थिंक फॉर मी ऑल्सो एज अ लर्निंग पर्सन, तो जब वो केसेस हुए तो इनिशियली ऑब्वियसली मैं लॉयर के थ्रू ही काम कराता था, लॉयर के थ्रू रास्ता देखता था, समझता था कि वो ड्राफ्टिंग कैसे कर रहे हैं, हाउ डू आई प्रेजेंट, व्हाट आर द टेक्निकल थिंग्स, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसमें। एंड स्टिल आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो चुका हूँ, यस, बट देन आई हैव अंडरस्टूड द बेसिक प्रोसेस, ड्राफ्टिंग, एप्लीकेशन बनाना, किस पॉइंट पे आर्ग्यू किया जा सकता है, क्या पॉइंट लिखना। सो जब ये मैंने किसी थ्रू लॉयर के थ्रू कराया अपने केसेस को लेके, देन आई अंडरस्टूड द होल प्रोसेस एंड ये भी समझ में आया कि तारीख कैसे ली जाती है ना। तो ये भी एक जरिया, ये भी एक कला, ये हम सबको आना चाहिए। तो एज आई सेड, इट्स नॉट नेसेसरी टू बी एन आईपी। The way out could be that you participate in this process of NCLT, start attending NCLT hearing। आप वहाँ NCLT में जाएं, बैठें, देखें क्या hearing हो रही है, किस तरह के केसेस आ रहे हैं, कैसे आर्गुमेंट किए जा रहे हैं, and then start assisting a particular person, senior person who is into this field। Because legality process जो है थोड़ा अलग होता है। What we as chartered accountants हम जो पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, our thought process जो हमारा horizon है, एक माइंडसेट है, वो थोड़ा अलग वे में डेवलप किया जाता है। लॉयर का माइंडसेट एक अलग वे में डेवलप किया गया है। तो वो थोड़ा मिक्सचर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड लॉयरशिप का एक संगम होना चाहिए। वो संगम हमें डेवलप करना पड़ेगा, एंड दैट इज ओनली बाय आइदर असिस्टिंग वन सीनियर पर्सन और यू हैव सर्टेन केसेस जिसमें आप किसी लॉयर को अपॉइंट करें, पहले आप उसके साथ देखें क्या होता है, एंड देन यू स्टार्ट ऑन योर ओन। ये क्योंकि अभी समय, पहले तो क्या था, because it was first time, तो you could have entered because उस समय प्रोसेस नया था, but because now things have established, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, so it's being around 5 years, so this would be an ideal way to start your practice। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें कोई और एडिशनल डिग्री चाहिए, सीए ही काफी है। जैसे नाम काफी है रोहित भाई, वैसे सीए ही काफी है। ओके सर। सर कुछ मेंबर्स के भी क्वेश्चंस हैं।
I would also like to request, अगर किसी और भी किसी members के question है तो please आप टाइप कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं चैट बॉक्स के थ्रू। सर टीएस कोठारी सर का क्वेश्चन है, we will be glad if you please elaborate your personal experience। सर आपको कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो किसी कॉर्पोरेट केस को हैंडल करने का, एंड आउटकम ऑफ सेम फॉर प्रैक्टिकल अपडेट्स। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है दैट, क्योंकि मैं इंसॉल्वेंसी का काम कर रहा हूँ तो आई हैव बीन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इन मेनी केसेस। वो वहाँ पर मैंने जैसे कहा कि मैंने लॉयर्स के थ्रू काम किया है, तो वहाँ पर लॉयर्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और स्पेशली इंसॉल्वेंसी केसेस में ही ज़्यादा एक्सपीरियंस ज़्यादा रहा है। तो जब वो केसेस मैंने हैंडल किए हैं तभी मुझे समझ में आया है कि एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वी हैव एन स्कोप जो शायद अभी लॉयर्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज के पास है। ऐसा नहीं कि वो कमजोर है, दे आर इक्वली गुड, दे आर वेल टू डू, बट हमारे भी काबिलियत रहेगी। नाउ जब मैं लॉयर के थ्रू जा रहा था तो मुझे लगा देयर इज ऑलवेज अ गैप which I wanted and which the lawyers have presented to the court। तो उस गैप को फिलअप करने के लिए मुझे लगा कि शायद एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आई कैन प्रेजेंट इट बेटर इन अ मच efficient, fluid manner in front of the court rather than somebody else or as a lawyer कोई प्रेजेंट करे, बिकॉज शायद मुझे अकाउंटिंग का नॉलेज, थोड़े डिफरेंट एस्पेक्ट्स का नॉलेज होगा, लॉ का नॉलेज थोड़ा कम था, बट वो लॉ के नॉलेज को मैंने एक्वायर करने की कोशिश की। नाउ आउटकम जो आया है फॉर ऑल दिस केसेस, किसी केस में जो whatever we had desired that has happened, कुछ केस में अभी भी पेंडिंग चल रहा है, और कुछ एक केसेस में शायद वो सक्सेस नहीं मिला है, बट दैट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ दिस all the cases pending at NCLT or any court. So my personal experience is that we as chartered accountants are capable enough and equally good. It is only just a matter of changing a bit of direction. Okay. सर नरेंद्र कोठारी सर का क्वेश्चन है, जज के क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा और बताएं जो आपने। नरेंद्र कोठारी जी, अगेन मैंने बोला कि मैं टेक्निकल पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, बट जज के क्वालिफिकेशन में आई थिंक जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है कि वो कोर्ट के जज रहा हो फॉर अ पर्टिकुलर 10 years 15 years, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है। तो मैं वो एनसीएलटी रूल्स में आप जाके समझ सकते हैं कि एनसीएलटी रूल्स में क्या क्या होगा। सो दैट्स वेरी बेसिक, तो उस पर मैं अभी ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक हमारा फोकस शुड इज मोर अदर देन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर एक और बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद एनसीएलटी 9 एंड व्हाट इज द फीस फॉर फाइलिंग द सेम? अगेन मैं बोला कि मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस का भी आंसर नहीं दूंगा, बिकॉज इसके लिए एक अलग से एक सेशन लूंगा जहां पर वो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स पे फोकस करेंगे। अभी हमारा मोर फोकस इज ऑन दी एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल्स, नहीं तो अगेन वो समय दूसरी जगह चला जाएगा, डायरेक्शन अलग लगता है। नरेंद्र सर का एक और क्वेश्चन था, सर एलएलबी होना जरूरी है क्या? तो नहीं नरेंद्र सर, मेरा वेरी स्पेसिफिक है कि हमें एलएलबी होने की जरूरत नहीं है। व्हेन वी वांट टू अपीयर इन द कोर्ट as a chartered accountant, we are authorized legal person to present at NCLT, and even NCLT recognizes and gives due importance to chartered accountants. आलोक जैन सर का क्वेश्चन है सर, हाउ टू गेट लिस्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग आईपी इन इंदौर, इज ट्रेनिंग अंडर आईपी इंपॉर्टेंट? प्रैक्टिसिंग लिस्ट ऑफ आईपी इन इंदौर, आलोक जी अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टीट्यूट में, आई थिंक ब्रांच के पास वो लिस्ट होगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ब्रांच में कनेक्ट कर लें, वहां से आई थिंक दे विल प्रोवाइड यू दी लिस्ट ऑफ ऑल दी प्रैक्टिसिंग आईपीज इन इंदौर। ट्रेनिंग अंडर आईपी जरूरी तो है, मतलब दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस। अगेन आलोक भाई, वो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस है, उसके लिए पूरा अलग ही मोड है, तरीका है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, उसके बिना काम नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि एनसीएलटी एरिया के प्रैक्टिस करना है, तो जैसे जिसने एनसीएलटी 9 और वो फीस की बात की, तो ये सब प्रोसेस है, आपको पता होना चाहिए। तो आलोक जी, जैसे ही आपने आईपी की बात की, तो एनसीएलटी प्रैक्टिस में आना है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा लॉ इंसॉल्वेंसी का पता होना ही चाहिए, तो ही जाके आप उसमें कर पाओगे, नहीं तो होगा नहीं। तो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना नहीं काम चलने वाला, और इंसॉल्वेंसी में तो डेफिनेटली नहीं चलने वाला। सर एक और क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल मैं आईपी तो नहीं बन सकता क्योंकि उसके लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन मुझे 10 साल का वेट करना पड़ेगा। तो बीइंग अ यंग मेंबर,
मैं और कौन कौन से काम कर सकता हूँ? लाइक असिस्ट करना है मुझे, ठीक है, तो मेरी ड्राफ्टिंग स्किल्स कैसे काम आ सकती हैं? या तो यस रोहित, तो मेरा सजेशन ये है कि एज ए यंग मेंबर, इफ यू आर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ लेस देन 10 years, initially you should try to assist any senior person who is either in the world of insolvency or in the world of NCLT cases, be it for insolvency or company law, either of the case, कोई भी. तो give your time और give 2 साल का समय दें आप, इसमें पूरे एरिया को एक्सप्लोर करें. उसके बाद आप खुद की प्रैक्टिस शुरू कर दें विथ रिस्पेक्ट टू एनसीएलटी मैटर्स. और ना एनसीएलटी मैटर्स में वहां कोई 10 साल की क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, वहां तो आप 5 साल में भी पहुंच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट यस, इन दी आईज ऑफ कोर्ट थोड़ी सीनियरिटी, थोड़ा वहां पर जो डेकोरम है, प्रेजेंटेशन है, वो मायने रखता है. बट एनीवे, यू कैन ऑलवेज डेवलप ऑन दैट. तो 5 साल प्रैक्टिस के बाद भी आप एनसीएलटी में जाना शुरू कर सकते हैं. एंड वंस यू हैव दैट एक्सपीरियंस, मेरे ख्याल से एक बार आप 2-4 साल एनसीएलटी प्रैक्टिस करेंगे, आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी बन सकता हूँ. तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का कोर्स भी कर सकते हैं 10 साल के बाद, तो अपने आप ही हो जाएगा. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे 10 साल वेट करना है. यू कैन स्टार्ट दी वर्क ऑफ प्रैक्टिस अंडर एनसीएलटी इवन आफ्टर 2-3 years. नाउ विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम उसको इंसॉल्वेंसी से क्लब करना चाहेंगे तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट. आई डोंट थिंक सो देयर इज मच रिक्वायरमेंट कि आप 10 साल के बाद ही आप वो इंसॉल्वेंसी की प्रैक्टिस में करें. नाउ टू डू दी वर्क ऑफ IP, obviously that 10 years criteria is required, but then to do what kind of work the IP does, that you can always do as chartered accountants. कि जैसे मेरे साथ कुछ यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएटेड हैं, और लास्ट 4-1 सालों में मैंने बहुत सारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एसोसिएट किया फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क. तो आप कोई IP के साथ, जिनके पास रीजनेबल काम हो, आ रहा हो या चल रहा हो, उनके साथ एसोसिएट हो. आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे to explore the areas of opportunity under insolvency. And definitely I can tell you, it's not only about NCLT की बात कर रहे हैं हम, NCLT प्रैक्टिस की जो बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, बट उसके अराउंड का भी जो एरियाज होते हैं, जरूरी नहीं कि यू हैव टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ NCLT, वहीं पर जाके हमें अपने आप को आर्ग्यूमेंट करना है. बैक एंड वर्क भी इतना सारा होता है विच इज मोर क्रिटिकल देन व्हाट इज डूइंग डन एट NCLT. बिकॉज NCLT में जब कोर्ट में जाते हैं तो वहां तो कभी कभी तो 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट में सब काम खत्म हो जाता है. एंड समटाइम्स द आर्गुमेंट कीप्स ऑन गोइंग. द मोर इंपॉर्टेंट इज द बैक एंड वर्क, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एनालाइज्ड, अंडरस्टूड. तो जो बैक एंड वर्क आपको करना रहता है, दैट कैन बी डन बाय यू. एंड उसमें बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत ज्यादा ही स्कोप है. और मेरे ख्याल से यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थोड़े इसमें एलिमेंट को मिस आउट करते हैं, बिकॉज दे थिंक यार उसमें तो 10 साल का एक्सपीरियंस है. ऐसा नहीं है. तो वंस 2-3 साल का आपका नॉर्मल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस हुआ है, यू कैन वेरी वेल एसोसिएट. एंड आप देखेंगे इतने सारे नए एरियाज इंसॉल्वेंसी में ही जनरेट होते हैं. विद इन दैट इंसॉल्वेंसी और कॉर्पोरेट लॉ, मैं जैसे मर्जर एक्विजिशन की बात कर रहा हूं, तो मैं मर्जर एक्विजिशन में एक प्रोसेस ओरिएंटेड एनसीएलटी में हो सकता है, बट मर्जर एक्विजिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए लॉट ऑफ सपोर्ट हैंड्स आर रिक्वायर्ड 230-235 में. तो इतने सपोर्टिंग हैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है. अपार्ट फ्रॉम द लीगल प्रोसेस इज अबाउट ड्यू डिलिजेंस में बहुत सारे एरियाज आ जा सकते हैं. देन एनालाइजिंग कि किस कंपनी को किसके साथ मर्ज करना, क्यों करना, क्या फ्यूचर होगा, किस तरह से हमारी नई कंपनी जो होगी किस तरह से प्रेजेंट करेगी. डीमर्ज में आना है तो डीमर्जर में हमें किसको डीमर्ज करना है, क्यों करना है. ऑल दी प्रोज एंड कॉन्स हैव टू बी लिस्टेड डाउन, बिकॉज एज अ लॉयर, एज ए कंपनी सेक्रेटरी और जो एनसीएलटी में प्रैक्टिस करते हैं, दे विल गो बाय द प्रोसेस. मैं अगेन एक डायरेक्शन बता रहा हूँ, वो एक प्रोसेस ओरिएंटेड है. प्रोसेस में एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल करनी है, हमें ये प्रोसेस फॉलो करना है, हियरिंग होगी, हियरिंग में आएगा, आपको ये करना है. बट व्हाई इट इज बीइंग डन, व्हाट इज द रीजन, व्हाट आर द बेनिफिट्स, ये जो बैक एंड में जो काम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर एक्सपर्ट इन दैट. तो फ्रंट एंड और बैक एंड को अगर हम उसको डिफरेंशिएट कर दें वर्क में, तो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बैक एंड वर्क में बहुत स्कोप आने वाला है. सर एक और क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द ड्रेस कोड फॉर अपीयरिंग बिफोर एनसीएलटी? इफ यू आर अ लॉयर तो ऑब्वियसली एज अ ड्रेस कोड जो लॉयर का होता है वो फॉलो करें. अदरवाइज इफ यू आर अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी है, तो अ फॉर्मल सूट वेयर इट लुक्स दैट यू आर अ प्रोफेशनल, वो आप पहन के जाएं तो अच्छा रहता है. दैट इज ऑलवेज डिजायर्ड. दैट्स अ नॉर्मल ड्रेस कोड.
सर एक बहुत रेगुलर आजकल क्वेरी आती है, आपने मिसमैनेजमेंट वाला नाम ले लिया या डिस्प्यूट वाली बात भी की थी, तो उसी से कनेक्टेड है। यंग मेंबर्स को बहुत ज्यादा यहाँ पर डाउट्स भी आते हैं कि डायरेक्टर को हटाना, स्पेशली हम कहते हैं कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लिया और डायरेक्टर को हम हटा सकते हैं, बट वहां बहुत सारे डिस्प्यूट्स आजकल होने लग गए, वो भी एनसीएलटी तक चले जाते हैं आरओसी के बाद। तो वहां पर बहुत थिंग वी शुड कीप इन अवर माइंड कि क्योंकि शायद चीजें चेंज हो रही है, डायरेक्टर्स को हटाना इतना आसान नहीं रहा अब। तो एक छोटा सा आपका इनपुट उस चीज। आप स्पेसिफिक केस की बात करो, मुझे डायरेक्टर्स को हटाना हो तो कैसे हो सकता है, या क्या उसके मतलब वही समझनी क्या हो सकते हैं सर, या किन चीजों का ध्यान रखें? ओके, तो देखिए डायरेक्टर्स को हटाना, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंपनी स्पेसिफिक सिचुएशन, बट जनरली लॉ इज वेरी क्लियर कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर। तो अगर हमें कोई भी एक्शन लेना है तो जस्ट फॉलो दैट लॉ एंड प्रोसेस, बिकॉज व्हाट आई हैव सीन इन द आईज ऑफ लॉ, दे गो बाय द रूल बुक। ऑब्वियसली रूल बुक के साथ जो भी केसेस डिसाइडेड हैं बाय हायर कोर्ट्स, वो सबको लेके, एंड देन जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड्स, इफ नथिंग हैज बीन अ प्रेसिडेंट, कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं है तो जनरल इंटरप्रिटेशन को लेके वो देखते हैं, बट देन दे गो बाय द रूल बुक। तो मुझे डायरेक्टर को हटाना है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, तो इफ यू फॉलो द प्रोसेस एज डिफाइंड इन द लॉ, देन इट कैन नॉट बी क्वेश्चन। फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा लॉ में। मतलब आपने प्रोसेस सही फॉलो किया तो कहीं पर भी डाउट नहीं होगा कि आपने गलत काम किया है। बट मिसमैनेजमेंट के मैंने जो केसेस देखे, इट्स मोर ऑफ द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज बाय द अदर ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, जहां पर दो ग्रुप रहते हैं तो एक ग्रुप में कुछ गलत काम कर देते हैं, तो जो आरोप आता है, दैट ब्लेम आता है, दे हैव नॉट कैरिड ऑन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग द कंपनी गोइंग कंसर्न, या डाइवर्जन ऑफ फंड, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज किया है विदाउट एनी कंसेंट एंड नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ लॉ, यही मेजर एक डिस्प्यूट आता है। तो जो केस मेरे सामने आया है, आई थिंक वहां पर सिंपल है दैट documentation has not been created as per the requirement of the law. All filings at ROC have not been done properly, या फाइलिंग किया भी है तो उसमें इंफॉर्मेशन अपलोड नहीं किया गया है properly, and that is a missing element. And doing any activity, कोई भी काम अगर बोर्ड कर रही है तो उसको बोर्ड मिनट्स में रिकॉर्ड करे, and the reason for that, and consent of all the members, वोटिंग हो रहा हो उसका कंसेंट लिया जाए, उसका डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट किया जाए। तो यहां पर अगेन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का इन कंसल्टिंग फॉर अ कंपनी, इज क्रिएटिंग दैट डॉक्यूमेंटेशन इन दैट परसेप्शन, इस परसेप्शन से, इस सोच से कि किसी दिन अगर मेरी डॉक्यूमेंटेशन कोर्ट में प्रेजेंट करना हो, इफ आई हैव टू प्रेजेंट इन द कोर्ट, तो कैसे प्रेजेंट होगा मेरे फेवर में। और शायद हम सब इस चीजों को इग्नोर करते। दैट इज माय एक्सपीरियंस। कुठारी जी ने पूछा कि एक्सपीरियंस क्या है, मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट नहीं किया, जिसके कारण दे आर नाउ बीइंग पनिश्ड और दे आर नॉट एबल टू फाइट फॉर देयर केस। एंड वेरी सिंपल डॉक्यूमेंटेशन, नाउ आपको पता है बैक डेटेड में कुछ नहीं हो पा रहा है, तो वेरी सिंपल डॉक्यूमेंटेशन। तो एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगेन अ वेरी बिग रोल विच वी हैव टू प्ले लुकिंग टू द फ्यूचर। हम आज बोले हैं बिजनेसमैन को भाई सब अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है, बट 10 years बाद जब अच्छा नहीं चलेगा, लुक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि वो डॉक्यूमेंट मुझे आज बनाना है। तो रोहित बहुत वैलिड पॉइंट पूछा है, स्पेशली फॉर यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। स्प्रेड योर वर्क बाय कंसल्टिंग द क्लाइंट, स्पेशली विद द कंपनी, एजुकेट देम कि हम कोई भी चीज डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, नॉर्मल आज का रूटीन कंप्लायंस तो ठीक है, बट किसी दिन इफ यू वांट टू सबमिट दैट डॉक्यूमेंट इन द आईज ऑफ कोर्ट, वेदर इट विल बी वैलिड और नॉट। तो जो डायरेक्टर को हटाने की भी आप बात कर रहे हैं ना, मैं उसी बात पे फोकस कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन की। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हटाया भी हो फॉर जेन्युइन रीजन, गलत रीजन भी, अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो तो कभी कभी काम हो जाता है। ऑलराइट सर। सर अभी कोई और क्वेश्चन है नहीं, अगर कोई किसी और भी मेंबर के क्वेश्चन है तो आप अभी बता सकते हैं, अदरवाइज वी आर अबाउट टू कंक्लूड द सेशन। सर वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट। यस, नॉट प्रॉब्लम। तो जब हम इस एनसीएलटी प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, तो इन स्पेसिफिक सिटीज की हम बात करें तो जैसे एमपी में हम सीआरसी की बात करें तो एमपी में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, ये 3-4 एरियाज होते हैं जहां पर हम कंसल्टिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में बात करें तो रायपुर तो है अब है ही, जहाँ पर बहुत सारा स्कोप हो सकता है। राजस्थान में बात करें तो उदयपुर, जयपुर, ये दोनों हब हो सकते हैं। जोधपुर हो सकता है बड़ा हब, भीलवाड़ा हो सकता है बहुत बड़ा हब फॉर प्रैक्टिसिंग इन दिस एरिया ऑफ एनसीएलटी। जहाँ पर भी कॉर्पोरेट कल्चर है, कॉर्पोरेट बिजनेस है, तो वहां पर डेफिनेटली एज यंग चार्ट अकाउंटेंट जो 5-6 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, एनीथिंग दैट ही वांट्स टू bring about a small change or a small change now and later on explore it to a bigger change, this is the right time. सही समय है इस लाइन में कूदने का। and definitely let me tell you, 15 साल बाद your practice will be much better than what you have expected, much better than what you have expected. Sir, तो समय देना पड़ेगा। NCLT practice, whether this NCLT practice will remain forever or on change in government, NCLT may be reversed. No, आलोक जी, I think मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा है, सॉरी डिस्टर्ब किया। It will remain. I mean, कोई कोर्ट अभी मैंने नहीं देखा कि कोर्ट में रिवर्स ऑर्डर आया है। लॉ में चेंजेस आते रहेंगे, बट एवरी चेंज विल ब्रिंग इन मोर अपॉर्चुनिटी, दैट इज फाइन, वो तो चलेगा। तो इंस्टेंट रिवर्स नहीं होने वाला है। some people think is the best route to divert fraud. देखिए, every law which we know has both the sides, तो उस पर हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। so going forward, cases plus minus आते रहेंगे depending upon the economic scenario, changes in the law, ये चलते जाएगा, but it is not going to stop. And as I said, राहुल भाई, if you focus on the prime sections, वो तो है, but prime के साथ ancillary areas sections इतने सारे हैं that this work is not going to stop. तो हम केवल ये fraud defaulters के focus नहीं करके overall perspective देखें, तो NCLT is a right approach, right step by the government to fill in that gap. मैंने जैसे कहा initially that gap was there specific for corporate world, तो gap fill up हुआ है, and as the number of benches increase, the objective for which this NCLT has been created, that speedy process, वो हो जाएगा। And when आपको कुछ डिसीजन मिलने लग जाता है as per desired dates, आपको जब क्लाइंट को कमिट करते हो यार 6 महीने में मैं आपको आपका डिसीजन ला के दे दूंगा या जजमेंट ला के दे दूंगा, and if it happens in 6 months, then I think इसकी efficiency आपको समझ में आएगी, and therefore people will recognize the importance. Sir, a question about insolvency exam. How hard it is to crack this exam, insolvency IP? Robin bhai, if you have cleared CA, don't worry about insolvency, है ना? तो चिंता नहीं करें, आप एग्जाम दें, आई एम श्योर दे विल बी एबल टू क्लियर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने सारे लोगों ने क्लियर किया तो आप भी क्लियर करोगे, व्हाई वरी अबाउट दैट। सत्येन सर का क्वेश्चन है सर, लास्ट, फिजिकल हियरिंग अभी चल रही है या वर्चुअल हियरिंग्स आर गोइंग ऑन हियर? वर्चुअल हियरिंग्स, currently it is virtual hearing, but hopefully physical hearing soon start हो जाएगा if everything is normalized. And you never know, you know, it may be a trend that only virtual hearing will be done, but बहुत सारे केसेस में वर्चुअल हियरिंग में काम नहीं चलता है। इन दी कोर्ट आपको प्लीडिंग्स जब करनी रहती है, जब आर्गुमेंट्स करने रहते हैं, नॉट प्लीडिंग बट आर्गुमेंट्स करने रहते हैं, तो it has to be in front of the honorable judge only where you can argue. तो वो फिजिकल हियरिंग बंद तो नहीं होगी, कंटिन्यू जरूर होगी, आने वाले समय में रहेगा। Thanks a lot, sir. I think there are no more questions now. So we need to conclude it. Thanks a lot, sir. Thanks a lot for throwing the light on so many important and practical aspects. So I hope जितने भी especially young members को बहुत कुछ एक insight मिला होगा about how to start, how to establish, and how to get the training. So now I would like to conclude this session. I would request CIRC committee members, Dinesh Kumar Jain sir, yeah, Shashikant Chandrakar sir, with the permission of the Dinesh sir, Shashikant sir. Rohit, thank you very much. I am very much grateful and very thankful to be an Amin some members.
members, that everybody can thought once in a while that they can go into the NCLT practice area also. एंड बहुत अच्छी बात आपने ये भी बोली सर कि आईपी कोर्स पास होना ही जरूरी नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे एवेन्यूज है जिसके थ्रू आप एनसीएलटी की प्रैक्टिस में एंटर कर सकते हैं. तो थैंक यू वेरी मच नवीन सर. एंड इफ दिनेश जी इज हियर, दिनेश जी. Yes, sir. Sir, I think Dinesh ji is not here. So I will propose also a formal vote of thanks to everybody who is attending this program, and special thanks to Rohit Khandelwal ji for moderating this session very nicely and taking up all the questions to our guest faculty, C. Naveen Khandelwal sir. And on behalf of CIRC of ICI, I am very much thankful to Naveen sir for giving this time and taking this session very nicely and celebrating all the facts about NCL. And at last but not the least, all the attendees who are attending this program, without which this program cannot be get success. And my all staff of CIRC who are there giving their support to organize this event. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Should I close? Yes.